Okay, so today we are going to discuss about the sensitivity of the system. ठीक है, अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो देखो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को हमने किसी स्पेसिफिक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है, ओके, एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन हैज अ पैरामीटर बी ओवर हियर. So we know we get an output which is dependent on the function of that particular system and that too dependent on the of those particular systems. Okay, so we have got a over here. So basically, if we talk about any system, we can represent that particular system in terms of this particular equation and parameter. Sensitivity S AB का मतलब क्या हो गया? We have a change in the percentage of A, okay, which is dependent on change in percentage of B, and I can represent this particular sensitivity as del A by A divided by del B by B. So this is nothing but it simply represents the change in percentage of A with respect to the change in percentage of B. तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? B by A टाइम्स ऑफ del A by del. तो अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को हमने ट्रांसफर फंक्शन या फंक्शन के मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, तो दैट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन is shown over here with this particular function f, and the parameters we have over here is nothing but a b. Okay, so b क्या हो गया यहाँ पे? Independent term हो गया, and that particular independent term modifies the function of a system, and that particular thing will provide us a output A. Okay, so we are interested to get a output A based on those particular values. So we have a sensitivity. Okay, so we typically want to know how our output would get changed when we have percentage change in parameters value. Okay, so that is why we have introduced over here the term sensitivity. Okay, the sensitivity AB represents what? Del A by A divided by del B by B, and it is nothing but a B by A del A by del B. So likewise, we have over here the transfer function. Okay, and that particular transfer function I can represent with a function which is dependent on G and H. Okay, so we have considered a closed loop transfer function, and that particular closed loop transfer function is dependent on the open loop gain and the gain provided by a feedback network. Okay, so basically we have a transfer function which is dependent on G and H value. I can represent this particular thing by a formulation 1 plus GH if we have a unity negative feedback network. Okay, closed loop unity negative feedback network. तो यहाँ पे भी हमको समझ में आता है जो ट्रांसफर फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है? G and GH वैल्यू पे डिपेंडेंट है. ठीक है, सो अगर मुझे सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसकी सेंसिटिविटी किस टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ change in transfer function T when there is a significant change in open loop gain G, और सेकंड क्या हो जाएगा? change in transfer function T when there is a change in feedback network or a gain of a feedback network. ठीक है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? del T by T divided by del G by G, and it is nothing but a G by T del T by del T. Likewise, I can represent as T H is nothing but a del T by T divided by del H by H, and it is nothing but a H by T del T by del H. ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आता है? किसी को कोई डाउट है? So we want to find the change in T when there is a significant change in G. Okay, and again we are interested to find the change in T when there is a change in H. Okay, so I can represent with these particular formulations over here. तो अगर हम देखें तो हमारे पास T का एक्सप्रेशन है यहाँ पे. Okay, so we need to find what? Del T by del G and del T by del H. Okay, so I am considering first condition and STG. STG के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? G by T del T by del G. Okay, so we have T over here. Okay, so I need to find del T by del G over here. So if I differentiate this particular term, so you can see we have in numerator G and denominator G component is present over here. T with respect to G is nothing but this particular
1 divided by 1 GH square over here. Okay. So if I substitute this particular value over here, okay, so now you can see the expression is modified to G. The expression of T is nothing but the 1 plus GH divided by G, and del T by del G is nothing but 1 divided by. So this comes out to be 1 by 1 plus G. Okay. So if we need to find a sensitivity of a T, okay, when there is a change in G, so this is the expression, okay, which we have evaluated. तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, del T by T divided by del G by G is nothing but 1 divided by 1 plus G है, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? del T by T equals to 1 by GH times of del G by G. ये आपको समझ में आता है? देखो ये del T by T क्या बता रहा है? परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन. del G by G क्या बता रहा है? परसेंटेज चेंज इन ओपन लूप गेन, एंड इट इज नथिंग बट multiplied with a factor 1 by 1 plus G. Okay. So percentage change in transfer function is nothing but 1 divided by 1 plus GH times of percentage change in open loop gain. Okay. So if I need to find a sensitivity corresponding to change in transfer function corresponding to a change in loop gain, open loop gain, so this is the expression which we have evaluated. Next we have, किसी और को कोई डाउट है? समझ में आ गया है कैसे लिखा है मैंने? So next, what we want to consider now, we are considering the sensitivity of T when there is a change in feedback network. Okay, when there is a change in the feedback network, इसको हम अगेन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? It is nothing but h by t del t by del h. Okay, हमने अभी यहाँ पे देखा था, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? del t by t del h by h, so it is nothing but by h by t multiplied with del t by h. Okay, so we have over here what? Again we have to find del t by del h, so g 1 plus g h. Okay, now we have to find again del t by del h over here, so 1 plus g h, यहाँ पे क्या है? 1 by u के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये डिफरेंशिएशन सभी को समझ में आता है. So if I substitute this particular thing over here, so we get what? Del t by h is nothing but h by t minus g square 1 plus gh square, and it is nothing but g gh plus g square plus. So it comes out to be minus GH 1 plus. So the expression for sensitivity when there is a change in feedback network is nothing but minus GH 1 plus GH divided by. Okay. So we can write it as a change in transfer function when there is a change in feedback network is nothing but minus GH 1 plus GH times of del h by h. Okay. Or I can simply write it percentage change in transfer function is nothing but minus GH divided by 1 plus GH times of percentage change in h. ठीक है, ये समझ में आता है सभी को? तो ये दो सेंसिटिविटीज के हमारे पास एक्सप्रेशन है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है? एच टी जी फाइंड किया हुआ है, एंड देन वी हैव इवैल्यूएटेड एच टी एच. ओके, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इट इज 1 by 1 plus GH टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन जी. ठीक है, तो ये वैल्यू जो है, और इसमें देखोगे तो आप क्या हो रहा है? एक माइनस GH का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है. तो बेसिकली इन दोनों पर्टिकुलर सेंसिटिविटीज की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, एस टी जी और
एस टी एच, तो इन दोनों सेंसिटिविटीज में से सबसे कम सेंसिटिविटी कौन सी होगी? सो अगेन आई एम कंसिडरिंग टू सिस्टम एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफर फंक्शन वैल्यूज ओके व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओपन लूप गेन एंड फीडबैक गेन। तो सबसे पहला सिस्टम जो मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ ओपन लूप सिस्टम। अगर हम ओपन लूप सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन लूप सिस्टम में हमारे पास क्या है? वी हैव अ सिस्टम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड विद द open loop transfer function G, okay, and we have input applied over here which I represent with R, and we have output which is C. So transfer function is nothing but a G over here. Okay. So if I find sensitivity with respect to G, okay, so we have the expression over here G by P, del T by del G. ठीक है, ये समझ में हमको आता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या पैरामीटर्स आएंगे मेरे पास? जी, डी की जगह क्या आ जाएगा? जी, एंड डेल टी बाय डेल जी, मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? डेल टी बाय डेल जी इज नथिंग बट 1 ओवर। ठीक है, तो अगर हम ओपन लूप सिस्टम कंसीडर करते हैं और उसका सेंसिटिविटी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1। इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन देयर इज अ चेंज इन, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? डेल टी बाय टी डिवाइड बाय डेल टी बाय जी, और यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो जाएगा? डेल टी बाय जी हो जाएगा। ठीक है, सो इससे हमको ये समझ में आता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओपन लूप गेन देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन, और व्हेन डेल जी बाय जी is 10%, then del t by t is also modified with a 10%. So this implies what? Change in G. Next, suppose now I am considering a closed loop system. Okay, so closed loop system. तो अब अगर हम क्लोज लूप सिस्टम कंसीडर करते हैं तो बेसिकली क्या होगा? ठीक है, सपोज हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम है जिसकी कुछ टिपिकल वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ठीक है, सो वी नो इफ आई वांट टू फाइंड STG over here, so STG का एक्सप्रेशन क्या आता है हमारे पास? 1 by 1 plus G है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, if I substitute this particular values of G and H over this particular expression, so we could get over here what? 1 by 1000. Okay, so ठीक है, so if del G by G is changed to 10%, or there is a 10% change in this particular open loop gain over here. Okay, so now we need to find how the overall transfer function will get changed over here. Okay, so if del G by G is changed to 10%, so del T by T क्या हो जाएगा हमारे पास? And it is nothing but a 1. ठीक है, del T by T को हम क्या लिख सकते हैं? del G by G, इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? दिस इज नथिंग बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000, और del T by G क्या है? 10%। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो परसेंटेज चेंज इन टी है, जो परसेंटेज चेंज इन टी है वो कैसा हो जाएगा हमारे पास? 100, which is nothing but a percentage change in t is nothing but a 0.01%। ये समझ में आ रहा है आपको? तो अगर ओपन लूप गेन में 10% का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्ड में हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें केवल कितना हो रहा है? 0.01% का चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये 0.01% का चेंज कैसे आया? देखो इन सब चीजें, इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करोगे तो इसमें बहुत बेसिक बेसिक चीजों में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसको कुछ भी नहीं करना रहता, बस ये बेसिक रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ रही है अच्छे से कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अगर हम
परसेंटेज चेंज इन जी की बात करें तो अगर हम 10% का चेंज करते हैं तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन में चेंज आ रहा है वो कितना हो रहा है 0.01%। यहाँ से समझ में आता है आपको? ठीक है, तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक नोट लिखना चाहूँ तो ये नोट क्या हो जाएगा? देखो, तो फीडबैक वैल्यू जो है, चले आगे देखो, अब अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में क्या हो रहा था? जब ओपन लूप सिस्टम में क्या आ रहा था? t% इज नथिंग बट 3%, मतलब जितना भी जी में परसेंटेज में चेंज आ रहा था उतना इसमें चेंज हो रहा था। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या हो रहा है कि 10% से चेंज हो रहा है, बट जी 10% से चेंज हो रहा है, बट टी इज ओनली चेंज टू 0.01%। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ही हमने ओपन लूप सिस्टम को क्लोज लूप सिस्टम में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या बनता है? फीडबैक नेटवर्क reduces the value of sensitivity। ये क्या होता है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक एडवांटेज होता है। ठीक है, कि हमेशा आप सिस्टम किस तरीके से बनाना चाहते हो, आपका सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो सिस्टम के पैरामीटर्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है जिसके कारण आपका पूरा आउटपुट का ऑल्टर हो रहा है, पूरे चेंज हो रहा है। ठीक है, सपोज हमारे पास जैसे हम यहाँ पे जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जी में अगर 10% तक भी चेंज हो रहा है तो ट्रांसफर फंक्शन में केवल कितना हो रहा है? 0.01% का चेंज हो रहा है, जो कि बहुत माइन्यूट सा चेंज। ठीक है, तो जी 10% का चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है? सपोज आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं और हम जानते हैं कि कोई भी कंपोनेंट जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करता है। ठीक है, सो समय के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मॉडिफिकेशन होता है। तो अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मॉडिफिकेशन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गेन है उसमें भी मॉडिफिकेशन आएगा। अगर उसमें मॉडिफिकेशन आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे ट्रांसफर फंक्शन में भी मॉडिफिकेशन आएगा। तो हमने जो सिस्टम बनाया है, ठीक है, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट देते हैं और वो एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी में भी डेविएशन आएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज। That's why we always want to design a system in such a way so that if there is a significant change in component value, so we have a very least change reflected in the output value। आपने जो टॉलरेंस और एरर्स की बात करी है ना, वो इसी से रिलेट करता है। अगर हम प्रैक्टिकल डिजाइन के एस्पेक्ट में बात करें तो प्रैक्टिकली जो है तो यहाँ पे आपके पास सेंसिटिविटी वैल्यू आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो बेसिकली ओपन लूप से क्लोज लूप में माइग्रेट होने का पर्पस ही है। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है? आपके पास सेंसिटिविटी वैल्यू जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है और हमको यहाँ से समझ में आ रहा है सेंसिटिविटी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए कि बहुत कम होना चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम व्हाट वी वांट, सेंसिटिविटी वैल्यू शुड बी वेरी हाई और वेरी लो। ठीक है, इट शुड बी वेरी लो। तो हमको यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क क्या करता है? इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी व्हिच इज द एडवांटेज ऑफ अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? For high reliability of closed loop transfer function, the value of sensitivity should be very low। ठीक है, ठीक है, सपोज अभी तो हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात किया था, तो इसमें हमने क्या किया? परसेंटेज चेंज इन जी को कंसीडर किया। नाउ इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए ओ। ठीक है, इसको कंसीडर कर लेता हूँ बी, क्योंकि हम यहाँ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज इफ वी हैव अ 10% variation in h, okay, so how our transfer function would get varied। okay? तो अगर हम 10% वेरिएशन की बात करते हैं तो हमारे पास अभी क्या हो गया? एस टी एच का एक्सप्रेशन हम जानते हैं। एस टी एच का एक्सप्रेशन क्या है? माइनस जी एच डिवाइड बाय 1 प्लस जी एच। ओके, so if I substitute the value of g and h over here, we could get what? Minus 1000 divided by 1 plus 1000। okay, so we have over here what? st by t divided by sh by h, which is nothing but a sth is nothing but a -1 over here। ये समझ में आता है आपको? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? -1 आएगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज st by t
is -1 times of del h by h. So if we have change in feedback network, okay, if we have a percentage change in feedback network, it is directly reflected to a percentage change in overall transfer function. Okay, so we have over here what 10% variation in h. So now you can see percentage variation in t is nothing but a 1 into 10%. Okay, so ये आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, फीडबैक नेटवर्क से बेसिकली अगर आपके पास सेंसिटिविटी की बात करोगे तो एच की सेंसिटिविटी, ओके, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी ये चीज डिस्कशन में बताया था कि सेंसिटिविटी वैल्यू जो है वो एसटीजी की कम होती है करस्पॉन्डिंग टू एसटीएच, एंड दिस इज द रीजन ओवर हियर, ठीक है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा फीडबैक नेटवर्क में उतना परसेंटेज आपको जो है ट्रांसमिशन ट्रांसफर फंक्शन में जो है परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व होगा। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन is less sensitive with respect to a forward gain, okay, rather than a feedback. अगर हम फीडबैक की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम फीडबैक की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन जितना परसेंटेज चेंज फीडबैक नेटवर्क में हो रहा है उतना परसेंटेज चेंज जो है हमारे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में भी आ रहा है। बट अगर हम ओपन लूप गेन की बात करें तो ओपन लूप गेन में अगर 10% चेंज हो रहा है तो उसका जो है 0.01% जो है केवल ट्रांसफर फंक्शन में मॉडिफिकेशन हो रहा है। इसीलिए हम वी ऑलवेज वांट टू डिजाइन अ सिस्टम विद अ यूनिटी फीडबैक, ओके। तो हम हमेशा सिस्टम क्यों डिजाइन करना चाहते हैं यूनिटी फीडबैक में, ये आपको समझ में आया। If we consider a unity feedback, then there is a least chance that the system would get observed more changes when there is a change in, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एच में चेंज आ रहा है तो टी में क्या आएगा, सिस्टम सेंसिटिव कब होगा जब देयर इज अ चेंज इन क्लोज लूप और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओके। तो ये आपको जो है ये चीजें पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज लेस सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड गेन रादर देन फीडबैक गेन। और हम एक चीज और जानते हैं कि फॉर अ गुड control system, output should be less sensitive with respect to forward, path gain, and parameter variation. ठीक है, सो कंट्रोल सिस्टम है उसका आउटपुट है कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लेस सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड का पाथ गेन एंड पैरामीटर वेरिएशन। अब एक चीज और मुझे बताओ, देखो, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आउटपुट है सी और ये मेरे पास आ गया इनपुट, ठीक है। अब अगर मुझे सेंसिटिविटी फाइंड करना है एस टी, ठीक है, तो अब सपोज मुझे इवैल्यूएट करना है ये दो सेंसिटिविटी एस सी टी और एस सी आर, ठीक है। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा रहनी चाहिए और क्यों? क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या है? क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि इन दोनों में से यहाँ पे एक सेंसिटिविटी, एक जो है आउटपुट में चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, तो पैरामीटर वेरिएशन है टी हो रही है, ठीक है। अगर जो भी यहाँ पे टी है इसमें जो भी पैरामीटर्स अप्लाइड है उन पैरामीटर्स के चेंज के कारण इस टी में कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है जिसके कारण सी में चेंज होगा। उसको मैंने क्या लिखा, सेंसिटिविटी एस व्हेन देयर इज अ चेंज इन टी, ओके। और दूसरा क्या है मेरे पास, चेंज इन सी व्हेन देयर इज अ चेंज इन आर, ओके। इन दोनों में से कौन सी सेंसिटिविटी ज्यादा होना चाहिए और कौन सी सेंसिटिविटी कम होना चाहिए, चलो बताओ सोचो। इन दोनों में से कौन सी सेंसिटिविटी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, कौन सी सेंसिटिविटी वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिविटी वैल्यू corresponding to system parameter should be very low, ठीक है, but sensitivity value corresponding to a change in input should be very high, okay। तो ये जो एक्सप्रेशन है SCR it should be very high, okay,
but SCT should be very low. It should be very low because we always want the system to be less sensitive corresponding to a change in parameter variation, but we want system to be very high sensitive corresponding to a change in input. तो हमारे पास एक पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा, सेंसिटिविटी शुड बी हाई और, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अभी हमने जो इतना डिस्कशन किया है तो हम रिलायबिलिटी के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था सेंसिटिविटी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी लो, ओके। तो फॉर अ हाई रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, suppose if we have system and if we are want to design a highly reliable system, define a condition for a high reliable system. So for high reliability of the system we want sensitivity should be very low, ठीक है। इससे समझ में आता है सेंसिटिविटी वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी मच लेस देन 1/. तो हम जानते हैं कि अभी तक हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ओपन लूप गेन है, ठीक है, उसकी करस्पॉन्डिंग सेंसिटिविटी वैल्यू जो है सबसे कम आती है ट्रांसफर फंक्शन में। सो वी ऑलवेज वांट टू कन्वर्ट अवर क्लोज लूप सिस्टम इन सच अ वे सो दैट वी कुड हैव अ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम विद अ यूनिटी फीडबैक, वी वांट टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन सच अ वे सो दैट वी कुड रिप्रेजेंट इट विद अ यूनिटी फीडबैक। तो हमारे पास एक टर्म आता है यहाँ पे डीसेंसिटिविटी। तो डीसेंसिटिविटी क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटेड विद अ D and it is 1 plus GH, okay? अब ये डीसेंसिटिविटी कहाँ से आया, अगर आप STG की बात करोगे तो STG क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस GH, ओके। सो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर की अगर आप बात करोगे तो ये फैक्टर क्या कर रहा है, आपके ट्रांसफर फंक्शन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ST बाय T का जो परसेंट है इस फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, सो इट इज 1 बाय D टाइम्स ऑफ del G बाय G, ठीक है। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर फैक्टर को क्या कहते हैं, डीसेंसिटिव फैक्टर, ठीक है। सो इट इज अ डीसेंसिटिविटी व्हिच इज 1 प्लस G। सो ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर हम एसटीजी की बात करें, एसटीजी की वैल्यू कम कब होगी, 1 बाय 1 प्लस G। सो वी हैव 1 प्लस GH is greater than 1, or I can simply write GH value which is greater than 1 over G। तो जब भी GH की वैल्यू कैसी रहेगी, कम रहेगी, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, देन ओनली वी सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, ओके। डोंट कंफ्यूज विद दिस पर्टिकुलर थिंग, आप मैथमेटिक्स लगाने लग जाओगे तो आप इस चीज को देखो, तो GH की वैल्यू जब भी आप 1 से ज्यादा सब्स्टिट्यूट करोगे तभी आप इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर पाओगे, ठीक है। सो GH वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, ओके, इट शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन 1, देन ओनली वी सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो इससे हमको ये समझ में आता है कि ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जो है, और GH क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट represented by GH, okay? So open loop transfer function should be greater than 1. अगर GH की वैल्यू greater than 1 है, that means open loop transfer function value should be greater than 1. तो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन में इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का यूज करता हूँ तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, G डिवाइड बाय 1 प्लस GH, okay? And if GH value is very much greater than 1, then it is modified to G divided by GH, ठीक है। And it is nothing but it is approximately equal to 1 by, so ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 by H के अप्रॉक्स होना
जो भी पैरामीटर्स है उन पैरामीटर्स को हमको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है इट्स वैल्यू satisfy this particular inequality if we want to design a very high reliable system. हाई रिलायबल सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि अगर उसमें बहुत सारा चेंज हो रहा है कंपोनेंट वैल्यू में, तब भी हमारा आउटपुट में जो है बहुत सारा चेंज ऑब्जर्व ना हो, ठीक है। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, और अभी आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराना, मुझे उनको भी कंपाइल करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। So now you can leave the meeting.